जी, what is Flash? To create, it is a most widely used, most popular animation software which provides an easy way to create animations. ठीक है, create animations that consists of text, images, videos and other effects. Images, sound, videos, everything can be included in the animation. Flash is a software. You can write it. Flash is the most popular and widely used animation software developed by Adobe Systems. Flash is the most widely used and popular animation software developed by Adobe Systems. It provides an easy way to create animations. It provides an easy way to create animations that consists of images, sound, videos, and other effects. How to start Flash? How to start Flash? What are the steps to start Flash? Yes. Adobe Flash. Professional CS6 पूरा वर्जन का नेम आएगा. स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, Adobe फोल्डर, then Adobe Flash CS6 professional CS6. Yes, Prabnu, repeat the answer. Adobe Flash Professional CS6. Okay, what are the steps for creating a new document in Flash? What are the steps for creating new document in Flash? हाँ जी बेटा, पहली बात, मेन्यू टैब्स जो होते हैं वो रिबन में होते हैं, और रिबन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में था. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेल पावर पॉइंट में थे रिबन. अभी उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर आप करोगे उनमें मेन्यू बार्स होते हैं. हाँ, फाइल मेन्यू, न्यू ऑप्शन, करेक्ट. आगे, which dialog box will appear? New document dialog box will appear. New document dialog box will appear. ठीक है. Then action script 3.0. In which tab is that? In that dialog box we have tabs. 2 tabs are there. In general tab, click on action script 3.0 option. Then last, okay, not to create. Click on OK button. हाँ जी, मैंने blanks क्यों डाले हैं? This could be in the complete the steps question. This could be in rearrange. In the format of rearrange, this could be straight. कि ठीक है, give me the all the 4 steps. तो 4 steps में जो चीजें मेन चेक होंगी, आपके डायलॉग बॉक्सेस के नेम, ऑप्शंस के नेम, मेन्यूज के नेम, वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए. ठीक है. न्यू फाइल मेन्यू, न्यू ऑप्शन, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स will appear. In that dialog box, in general tab, click on action script 3.0 option, then click on OK button. It could be in many form. questions steps वाले आपके many forms में हो सकते हैं. It could be in rearrange, random order में दिए steps ऊपर नीचे किए हुए, आपको correct order में करने हैं, या blanks में दिए हैं, या पूरा question दिया. Next question, what are the various options in new document dialog box?
What are the various options in the new document dialog box? Or sorry, document settings dialog box. What are the various options in document settings dialog box? Width, height, frame rate, autosave, ruler units. Correct. Document settings dialog box. कौन सी options हैं? Width, height, that will define the width and height of the stage. Then dimensions या width और height अलग अलग वर्जन पे डिपेंड करता है. किसी वर्जन में dimensions है, किसी वर्जन जो प्रैक्टिकली आप कर रहे हो वहां पे width and height दिया होता है. Then you can have the ruler unit, background color, frame rate, auto save. ठीक है, it could be width, height, इसकी जगह पर dimension भी लिखा हो सकता है, and dimensions के अंदर आगे height और width होती है. Then you can have background color, frame rate. What is the by default frame rate? 24 FPS. FPS की full form? Frames per second. Frame per second. Okay. Background color, frame rate, auto save. Ruler unit. Ruler unit. ठीक है. Options for document settings dialog box. Width, height, background color, frame rate, auto save, ruler unit. Frame rate by default 24 FPS. 20 FPS की full form frames per second. By default ruler unit. रूलर यूनिट. हाँ, मेजरमेंट किसमें होती बाय डिफॉल्ट? पिक्सेल्स. बाय डिफॉल्ट रूलर यूनिट इज पिक्सेल्स. बाय डिफॉल्ट रूलर यूनिट पिक्सेल्स. व्हाट आर द अदर यूनिट्स? रूलर यूनिट्स और कौन कौन से होते हैं? इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स. हाइट एंड विड्थ के यूनिट्स मत पूछ रहे हैं, किस यूनिट में मेजर कर सकते हो? सेंटीमीटर्स, इंचेस, मिलीमीटर्स, पिकास और पॉइंट्स. पिकास, PICAS. ठीक है. और पिक्सेल्स तो बाय डिफॉल्ट दिया ही होता है. सेंटीमीटर्स, millimeters, inches, points, picas, PICAS. Okay, what are the various components of flash window? What are the various components of flash window? Stage, timeline, frames, keyframes, layers, playhead, tools panel, properties panel. So you can have stage, timeline, frame, keyframe, layers, playhead, properties panel, and tools panel. Properties panel, tools panel. Next, 4 sections of tools panel. View section, color section, tool section, option section. Tools, view, colors, options. Tools, view, colors, options. Find your answers in your book also, beta. साथ साथ
आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हो कि इसके आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं. Now, each and every component की definition. What is stage? Stage is the white area in the center on which we add the objects and create animations. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, बुक में मत देखो. स्टेज क्या है? ब्लैक सेंटर में होती है, व्हाइट कलर की होती है बाय डिफॉल्ट. एंड करते क्या उसके ऊपर? ऑब्जेक्ट्स वहीं पे ड्रॉ करते हैं या प्लेस करते हैं एंड क्रिएट एनिमेशंस. So whatever you do on stage, write it. Stage is a white area in the center where we place the objects and create animations. Then timeline. Timeline consists of frames and layers. Frames and layers, and it sets the timing for your animations. It sets the timings for your animation. कल हमने shape twinning करी थी. 01 से लेके 50 तक मैंने यूज किए थे फ्रेम्स. अगर आप कम फ्रेम यूज करोगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी. टाइमिंग सेट हो गया एनिमेशन का. ठीक है, एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस फ्रेम पे खत्म हो रही है, दैट इज ऑल्सो सेट इन द फ्रेम्स टाइमलाइन. So timeline sets the beginning and ending of the animation also. It sets the timing of the animation also. That means timeline is used for creating the animations, for applying the animations. ठीक है, तो टाइमलाइन इज अ component of the window that sets the timing of the animation. It consists of frames and layers. अभी हम सिर्फ एक लेयर यूज कर रहे हैं. कल मैंने आपको 2 ऑब्जेक्ट सिखाए थे जो ओवरलैप कर रहे थे, बट जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं कलेक्टिवली तो वो इकट्ठा सेलेक्ट हो जाता है, पार्ट कट हो जाता है. बट अगर वो अलग अलग लेयर पे होते तो वो हम इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते थे. ठीक है, और हर लेयर का फ्रेम अलग आएगा, हर लेयर की टाइमलाइन अलग बनेगी, तो आप हर लेयर में हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग एनिमेशन दे सकते हो विदाउट ओवरलैपिंग ईच अदर. ठीक है, हमारे पास प्रैक्टिकल का टाइम कम मिला, नहीं तो फ्लैश में बहुत ज्यादा अच्छे प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं. आपके एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, आप लोग ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो बहुत अच्छे बाय यूजिंग द शेप ट्विनिंग एंड मोशन ट्विनिंग. क्या चाहिए आर्यन? हाथ पीछे क्या लेना उससे? What is frame? What is frame? A small rectangular cell on the top of timeline is called frame. On the top नहीं है, in the timeline है. timeline के अंदर होते हैं. Frames are rectangular cell in the timeline. ठीक है, frames are rectangular cells in the timeline. Each frame has a number. ठीक है, and the animation is divided into frames. Key frames, special frames, properties That of the changes object. the properties of object. Properties of an object. Properties change करेंगे, that will give the effect of animation. Like कल हमने एक एनिमेशन किया था शेप ट्विनिंग. हमने एक फर्स्ट फ्रेम में जब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, दैट फ्रेम विल हैव द ब्लैक फिल्ड सर्कल. दैट मीन दिस इज अ की फ्रेम कि इस फ्रेम में एक एक्शन हुआ है, एक शेप ड्रॉ हुई है. ठीक है, देन we go to the 50th frame, we inserted a key frame. हमने खुद इंसर्ट किया था की फ्रेम because we want to insert an action there, right? तो insert the key frame, then that specifies कि यहाँ इस फ्रेम में हमें कोई एक्शन या कोई चेंज चाहिए. to specify the frame कि yes इस फ्रेम में I need some change, whether it is in the change of shape, whether it is in the change of some property. हो सकता है मैं सिर्फ कलर चेंज करूं, तो क्या होगा जब मैं एनिमेशन को प्ले करूंगी तो उस फ्रेम में आके कलर चेंज हो जाएगा. मैं सिर्फ फिल कलर चेंज करके छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं करती. और तो व्हेन आई प्ले द एनिमेशन, तो दैट व्हेन द प्ले हैड रीचेस टू दैट की फ्रेम, कलर विल चेंज. तो प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो दैट विल गिव एन इफेक्ट ऑफ एनिमेशन. दैट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप किस चीज को कैसे क्रिएट करना चाहते हो. ठीक है, की फ्रेम्स आर स्पेशल फ्रेम्स व्हिच allow you to change some properties of objects so that the animation can be created. Animation can begin or end there. Okay, layers, same definition है जो हमने Photoshop. These are the transparent sheets that are stacked on each other.
that hold some object and are stacked on top of each other. Transparent sheets that hold some objects, individual objects, and are stacked on the top of each other. कई बार क्या होता है, हम एनिमेशन बना रहे हैं, आप सीन देख रहे हो, एक बैकग्राउंड है, ठीक है, जिसमें स्काई का सीन है या एक वाटर पार्क है या एक वाटर सीन है, बट उसके आगे मैंने जो ऑब्जेक्ट या मैंने कोई एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, एंड व्हेनेवर आई वांट टू सेलेक्ट दैट कैरेक्टर टू मेक सम चेंजेस, क्या होगा, पीछे की एनिमेशन जो बैकग्राउंड है वो साथ में सेलेक्ट हो जाएगी, अगर इफ इट इज ऑन द सेम लेयर. बट इफ आई हैड द बैकग्राउंड ऑन सेपरेट लेयर, देन आई क्रिएटेड अ न्यू लेयर एंड इंसर्ट द कैरेक्टर ऑन दैट लेयर. उसके बाद जब भी मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगी या मैं उसको मूव करूंगी या चेंजेस करूंगी, तो बैकग्राउंड साथ में सेलेक्ट नहीं होगी, राइट? अगर आपने बैकग्राउंड में कलर दे दिया, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक कैरेक्टर इंसर्ट किया, आपने कल सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करके देखा है, तो सारा जितना एरिया हम ड्रैग करें या क्लिक करें वो सिलेक्ट हो रहा है, तो बैकग्राउंड साथ में सिलेक्ट हो जाएगी. बट इफ इट इज ऑन द डिफरेंट लेयर, इट विल नॉट बी सिलेक्टेड. तब आपकी वो ऑब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्ट होगी. अगर आपके पास 2 कार्ड्स है, आप चाहते हो कि दोनों साइमल्टेनियसली मूव करें, तो आप एक लेयर में उनको एनिमेशन नहीं दे पाओगे, बिकॉज एक लेयर में एक ऑब्जेक्ट को जो एनिमेशन दे दी, दूसरे ऑब्जेक्ट को एनिमेशन कैसे दोगे सेम टाइमलाइन में, टाइमिंग्स कैसे डिफाइन करोगे? तो वी विल हैव सेपरेट लेयर फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड डिफाइन द एनिमेशन इन ईच लेयर. ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखना. देन एक्टिव लेयर इज इंडिकेटेड विद विच सिंबल? Activated layer is indicated with which symbol? Pencil. Pencil icon. Active layer is indicated with the pencil icon with the layer name. Activated layer means कि presently हम किस layer में काम कर रहे हैं. अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट में मेरे पास 10 layers हैं, तो मैं इस वक्त कौन सी लेयर में काम कर रही हूँ, मेरी इस वक्त कौन सी लेयर में चेंजेस आ रही है, दैट इज इंडिकेटेड विद द पेंसिल पॉइंटर, पेंसिल आइकन. Then playhead, it indicates current frame on the stage. Properties panel, पोजीशन तो छोड़ ही दो, कल बॉटम पे आ रही थी, टाइमलाइन ऊपर आ रही थी, यहाँ पे लिखा टाइमलाइन एट द बॉटम होती है, तो वी कैन प्लेस एनीवेयर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पैनल डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल की प्रॉपर्टीज आ रही है, अगर मैंने कोई टूल सेलेक्ट नहीं किया, स्टेज पे क्लिक किया, तो स्टेज की प्रॉपर्टीज आ रही है. इफ आई सेलेक्टेड ऑन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो इट विल गिव मी द प्रॉपर्टीज फॉर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल. If I select eraser tool, it will give me the properties for eraser tool. Pencil tool लिया तो pencil tool की properties आएंगी. So that means it will give me the properties for the selected tool or selected object. Object draw कर चुके हैं, उसको select किया तो उसकी properties आएंगी. ठीक है, तो it will give me the properties for the selected tool or object. Tools panel. Consists of various tools. जितने भी tools हमें चाहिए work करने के लिए, whether it is for drawing, whether it is for selecting, whether it is for erasing or modifying the objects. ठीक है, tools for drawing or selecting or modifying the objects. It will consist of all kinds of tools. So it is divided into 4 sections: tool section, view section, color section, option section. Tool section means tools for drawing, painting and selecting objects. View section will have the tools for viewing and zooming, जिसमें आपके पास hand tool और zoom tool आ रहा है. Then you have the color section in which you have the two colors, fill color, stroke color और reverse color option. आपके पास देखो एक line का color आ रहा है, stroke color, एक fill color आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है black and white, आपके पास boxes आ रहे हैं, box नजर आ रहा है, उसके आगे आपके पास एक छोटा सा एरो बना हुआ है. बुक में देखो, टूल्स पैनल कलर्स के आगे देखो, एक आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट, आपके पास ऐसे बॉक्सेस बने हैं, उसके आगे आपके पास एक एरो बना हुआ है ऐसा. दिस विल रिवर्स द कलर, टू रिवर्स, टू चेंज द कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट,
एंड देन रिवर्स द कलर, कलर को फोरग्राउंड को पीछे और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड करने के लिए, ठीक है। Then option section, this section includes the various modifiers for currently selected tool. Modifiers, जैसे पेंसिल टूल अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके 3 मॉडिफायर्स हैं। 3 मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं? स्मूथ, स्ट्रेट एंड कर्व, ठीक है। कि पेंसिल टूल किस तरह से वर्क करनी चाहिए, जो भी मैं ड्रॉ करूं वो रफ ड्रॉ होना चाहिए या स्मूथ ड्रॉ होना चाहिए, तो वो स्मूथ ऑप्शन है। अगर मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया पेंसिल के साथ, ठीक है, सपोज मेरा कुछ रफ सा आया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू लाइक स्मूथ स्ट्रोक। तो पेंसिल के 3 मॉडिफायर्स है, इरेजर के 5 मॉडिफायर्स है, पेंट बकेट के 5 मॉडिफायर्स हैं। कैसे? आप नॉर्मली MS पेंट में जाके जब कलर फिल करते हो, आपका हल्का सा गैप अगर रह जाए तो कलर लीक होता है। MS पेंट में अगर याद हो, आपने जब कलर्स फिल करते हो तो आपका थोड़ा सा भी गैप कहीं रह जाता है तो कलर लीक होता है। आप लाइन पूरी करते हो कि लाइन पूरी होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, मॉडिफायर्स है पेंट बकेट के। क्लोज स्मॉल गैप्स, क्लोज मीडियम गैप्स, क्लोज लार्ज गैप्स, डोंट क्लोज गैप्स। क्लोज मीडियम गैप्स या स्मॉल गैप्स मींस कि अगर कहीं से कोई गैप है तो उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कंसिडर करके कलर फिल करें, ठीक है। इरेजर के मॉडिफायर्स हैं, इरेज मुझे सिर्फ फिल कलर इरेज करने हैं, या मुझे सिर्फ स्ट्रोक इरेज करने हैं, या बैकग्राउंड इरेज करनी है, या फोरग्राउंड इरेज करना है। देयर आर मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स आर डिस्प्लेड इन द ऑप्शन सेक्शन। आपने अभी ज्यादा टूल्स यूज नहीं करे हैं, बट इफ यू क्लिक ऑन दीज टूल्स यू विल गेट द मॉडिफायर्स एट इन दिस सेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज what are those which tool is used to select the object? Selection tool. आपने selection tool arrow वाला देखा, उसके साथ एक और arrow होता है थोड़ा सा different color में, वो होता है sub selection. That is also a selection tool. Sub selection है वो। arrow के नीचे एक black arrow है, इसके नीचे देखो एक white color का arrow नहीं है tools panel में। Check in the tools panel. That is your sub selection tool. That tool is also used to select the sub parts of the image. ठीक है? Okay. Selection tool. Shortcut key for selection tool. V. Shortcut keys आपने सारी करनी है, अभी से लिखनी स्टार्ट कर दो। Selection tool के लिए V. Document settings के लिए Ctrl+J. Photoshop में Ctrl+J किसकी बताई थी? करेक्ट, डुप्लीकेट लेयर। फोटोशॉप में Ctrl+J डुप्लीकेट लेयर के लिए थी, बुक में नहीं थी, मैंने वैसे बताई थी आपको। हाँ जी, सिलेक्शन टूल, V, डॉक्यूमेंट सेटिंग्स, Ctrl+J। लिस्ट बना लो, लर्न करना इजी होता है। Then free transform tool, Q. To insert new frame, F5. For keyframe, F6. Create symbol, Ctrl+F8. Play movie, मैंने वैसे डिफरेंस बताया था, आपकी बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। एक टेस्ट मूवी है और एक प्ले मूवी है, एक प्ले है। प्ले के लिए एंटर है, ठीक है, प्ले के लिए एंटर है। That will play at the same spot. आपकी स्टेज पर वहीं पर प्ले करके दिखाता है। Ctrl+Play आपको सेपरेट विंडो में एनिमेशन प्ले होती है और वो कंटिन्यूसली प्ले होती रहती है लूप में। That is Ctrl+Enter. टेस्ट मूवी, F5 फ्रेम, F6 की फ्रेम,
to create symbol, control plus F8. क्रिएट सिंबल होगा या न्यू सिंबल होगा, या सिंबल के लिए कंट्रोल प्लस F8. टू टाइप्स ऑफ एनिमेशंस, motion tween Motion and tween, shape shape tween. tween. Which type of animation you need to create a symbol? कल शेप ट्वीनिंग करी थी, कोई सिंबल क्रिएट किया था? मोशन ट्वीन. ठीक है. इन विच टाइप ऑफ एनिमेशन यू हैव टू क्रिएट अ सिंबल, बिकॉज अगर आप सिंबल नहीं क्रिएट करोगे, एक ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट नहीं करोगे, इट विल नॉट अप्लाई द मोशन ट्वीन, इट विल नॉट मूव. ठीक है. Whenever you want to apply the motion tweening, you are supposed to convert the object जिसको आपने मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, आपको पहले उसको सिंबल में कन्वर्ट करना है. सपोज आपने रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया है. ठीक है, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, आप चाहते हो कि मेरा ये रेक्टेंगल 50th फ्रेम तक मूव होके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आ जाए. या आपने स्टार ड्रॉ किया, आई वांट कि मेरा जो स्टेज पर स्टार है, इट शुड, मैंने यहां ड्रॉ किया है, आई वांट इट शुड मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन इट शुड मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड इट शुड कम बैक हेयर. तो दिस इज योर मोशन ट्विनिंग. मैं चाहती हूँ कि स्टार मेरा जो है यहां से यहां आए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, या यहां से यहां आ जाए, whatever, जो भी आपको एनिमेशन क्रिएट करनी है. तो दिस इज योर मोशन ट्विनिंग. एंड whenever you want to move an object, draw the star, select it by using the selection tool and press Ctrl plus F8 to convert it into symbol. सिंबल में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद जो स्टेप्स आपने शेप ट्विनिंग के लिए दिए, सेम स्टेप्स इसके लिए क्या करना हमने, प्लेस ऑब्जेक्ट, यहाँ ड्रॉ हो गई, सिंबल में कन्वर्ट हो गया. दिस इज ऑन फ्रेम 1. फ्रेम 1 में हमने ये ड्रॉ कर लिया, सिंबल में कन्वर्ट कर लिया. देन क्लिक ऑन एनी अदर फ्रेम. सपोज मैंने फ्रेम 30 पे क्लिक किया, इंसर्ट की फ्रेम बाय प्रेसिंग द F6. नाउ मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर. आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां से मूव करके इस फ्रेम पे आके आप उस ऑब्जेक्ट को ये ऑप्शन दे दो कि ये इस फ्रेम में ही मेरा ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए. राइट, कर दिया. फिर हमने क्या किया था लास्ट स्टेप शेप ट्विनिंग में, राइट क्लिक इन बिटवीन द फ्रेम्स. तो राइट क्लिक करोगे इसमें फ्रेम 1 और 30 के बीच में एंड चूज क्रिएट मोशन ट्वीन. ठीक है. तो क्या होएगा, आपका स्टार जब प्ले करोगे तो इट विल मूव इट फ्रॉम हेयर टू हेयर. चाहो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर दो. फ्रेम यहाँ पे जब मूव किया, यहाँ पे आए, कलर चेंज कर दिया, तो जब मूव होगा तो साथ साथ कलर भी चेंज होगा. ठीक है. उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो. 30th के बाद मैंने 60th फ्रेम पे क्लिक किया, F6 प्रेस किया, की फ्रेम इंसर्ट हो गया, देन मूव द स्टार फ्रॉम हेयर टू हेयर. सिंबल में सिर्फ पहली बार कन्वर्ट करना है, मूव इट फ्रॉम हेयर टू हेयर. देन राइट क्लिक इन बिटवीन, चूज क्रिएट मोशन ट्वीन. तो क्या होगा, आपका स्टार मूव यहां तक. तो यू कैन कंटिन्यू विद द स्टेप्स. ठीक है. यहां पर आकर सपोज आपने क्या किया, मैंने जब लास्ट फ्रेम पे आए, मैंने स्टार को सेंटर में मूव किया, साथ में 4-5 स्टार्स और ड्रॉ कर दिए, तो वो भी अपीयर हो जाएंगे. दैट मीन्स जब यहाँ पे स्टार मूव करके सेंटर में आएगा, इट विल स्कैटर द स्टार्स. दिस काइंड ऑफ एनिमेशंस यू कैन क्रिएट. यू कैन टाइप द टेक्स्ट कि मुझे इसके बाद आगे मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है. नेक्स्ट किसी फ्रेम पे क्लिक करो, F6 प्रेस करो, टेक्स्ट इंसर्ट कर दो, तो टेक्स्ट आ जाएगा, तो टेक्स्ट विल अपीयर. तो दैट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि मुझे किस फ्रेम पे क्या करवाना है. जिस फ्रेम पे आपको कुछ नया एक्शन करवाना है, जस्ट इंसर्ट की फ्रेम, डू दैट एक्शन, एंड व्हेन यू प्ले इट, इट विल प्ले द एनिमेशन. ठीक है. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टेप्स नोट डाउन करो। और हार्दिक, बहुत बातें करनी है आपको, कंटिन्यूसली आप उसको कुछ कह रहे हो एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू द स्टेप्स। नेक्स्ट टाइम जब लैब में जाओगे आप ये वाली एनिमेशन क्रिएट करोगे, ठीक है? स्टेप्स मैंने अभी आपको समझाए हैं। बोलो। क्वेश्चन तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन होना चाहिए। स्टेप्स फॉर फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड। Steps for rotating an object, then steps for copying an object and moving an object. Copying, moving, flipping, rotating, चारों चीजों के स्टेप्स आपने करने हैं। How will you select an object? Double click on the object. बताओ मैम, ये जो लेयर के साथ एक लॉक होता है मैम, उसको हम अनलॉक कर लेते हैं। हाँ। मैम फिर से लॉक कैसे करते हैं? दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करके, नहीं मैम, वो नहीं पता। इसी को क्लिक करके लॉक होगा, इसी को क्लिक करके अनलॉक होगा। इसके साथ एक आई आइकन होता है टू हाइड और मेक द लेयर विजिबल और हिडन, कि मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करना है, दूसरी लेयर का ऑब्जेक्ट मुझे इंटरफेयर कर रहा है, प्रॉपर्ली नहीं समझ आ रहा कि ऑब्जेक्ट कितना वो है, आप उसको टेम्परेरीली हाइड कर सकते हो, तो उस लेयर की ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगी, आप अपनी लेयर पे काम करो। जब काम कर लिया आप उसको वापस विजिबल करो। लॉक करने का मतलब होता है कि आप उस लेयर के ऑब्जेक्ट को अब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो लेयर लॉक हो गई है, उसमें कोई ना इरेज होगा ना कुछ ऐड होगा। क्लिक करके, क्लिक ऑन द लॉक बटन। आपका टाइम लाइन में जहाँ लेयर्स आ रही होती है, लेयर 1 आती है, उसके साथ में 2-3 आइकन होते हैं। लॉक का आई का आइकन होता है, दैट इज फॉर विजिबिलिटी। ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट?